Okay, so today we are starting with February-March 2025, paper 4, variant 2. This is A2 level physics. Okay, so here are some data points, some formulas. Let's start with the first question. A steel ball is placed on the inside surface of a circular cone. Okay, the ball moves in a horizontal circle at constant speed. Perfect, as shown in figure 1.1. ठीक है. The angle of the side of the cone with the horizontal is 52 degrees. Perfect हो गया. There is no friction between the ball and the cone. Okay. Figure 1.1 shows the cross section through the cone at the steel ball. Okay. On figure 1.1, draw labeled arrows to show two forces acting on the ball. बेटा बॉल पे कौन सी दो फोर्सेस लग रही होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल द वेट ऑफ द बॉल दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड. Then we will have the normal reaction force, which will be acting like this. This was a previous examination question like this. But a previous examination में भी इस तरह question आया है. The weight of the ball is acting downward. Normal reaction force is acting towards the top like this. Okay, so ये जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. Okay. Describe how the force acting on the ball causes acceleration to be centripetal. भाई ये जो force act कर रही हैं on the ball, how does it cause the acceleration to be centripetal? First of all, if you realize this angle with the y-axis will be what? Beta, the angle of the reaction force with the y-axis will be what? Anji, this will be 52 degrees. The angle of the reaction force with the y-axis will be 52 degrees. Can you resolve the reaction force? Yes, sir. ये reaction force को resolve कर सकते हो? If you resolve the reaction force, it will be broken down into two components. एक यहाँ पे आ जाएगा R sin 52 and एक आ जाएगा towards the top R cosine 52. Explain how the forces acting on the ball cause the acceleration to be centripetal. What will you say? The vertical component, the vertical component of the contact force, the vertical component of the contact force balances out weight, balances out weight, and the horizontal component, horizontal component component of contact force provides, beta, horizontal component of contact force provides what? Provides the resultant force towards the center, towards the center. Okay, let's further move ahead. आगे बढ़ते हैं. The ball moves in a circle of radius this. You have to show that the speed of the ball is this. अच्छा जी, आपने speed of the ball निकालनी. First of all, do you realize r cosine 52 is equals to weight? This is your first equation. Then you also realize that r sine 52 is equals to your centripetal force. Second equation. क्या करेंगे बच्चों? Bring these two equations downward. R sine 52 is equals to the centripetal force is your equation 2. R cosine 52 is equals to your weight. This is your equation 1. Divide both the equations. Divide equation 2 by equation 1. क्या हो जाएगा? R sine 52 divided by R cosine 52. R cancel out. ठीक है. Centripetal force divided by weight. बेटा साइन 52 डिवाइडेड बाय कोसाइन 52 क्या हो जाएगा? साइन 52 डिवाइडेड बाय कोसाइन 52 क्या हो जाएगा? हाँ जी, जीनियसेस. This will be equal to tan 52. What is the formula of centripetal force? mv square over r.
What is the formula of weight? mg, m cancel out. Multiply rg towards the right side. Rg 1052 taken under root is equals to your velocity. What is the value of r? 0.15. g की वैल्यू क्या है? 9.81. tan की वैल्यू क्या है? 1052 taken under root. What does your velocity comes out to be? Let's calculate. 0.15 into 9.81 into tan of 52 taken under root. क्या आंसर आता है? 1.37 ms minus 1, or you can say 1.4 meters per second is your answer. You have to calculate the angular speed of the ball. You have to calculate w of the ball. You will say v is equals to rw. Velocity क्या है? 1.4. Radius क्या है? 0.15. Can you calculate w? Yes, 1.4 divided by 0.15. What does w comes out to be? 1.4 divided by 0.15. W comes out to be 9.3 radians per second. The speed of the ball is increased. अच्छा जी, velocity of the ball increase हो रही है. Explain why the radius of the circular path of the ball increases. Beta, do you remember this formula? Centripetal force is equals to mv square over r. क्या आप realize कर सकते हो? Centripetal force and mass are constant. If centripetal force and mass are constant, velocity becomes directly proportional to radius. If velocity is directly proportional to radius, as radius increases, the velocity of the ball increases. You can say velocity square is directly proportional to radius, as radius of the ball increases, velocity, speed of ball increases as speed of ball and radius are directly proportional. Easy peasy, lemon squeezy. Let's move ahead to the next question. Simple. Let's move on to question 2. The magnitude of gravitational potential on the surface of a planet of radius r is phi. The planet may be considered to be an isolated sphere. Okay. क्या कह रहा है? एग्जामिनर की साइकी समझो. देखो, एग्जामिनर की अगर वो होता है ना कि क्या होता है, एग्जामिनर की वर्डिंग्स अगर समझना शुरू कर दे तो फिर तो तुम आराम से ए स्टार ए ले सकते हो. द मैग्नीट्यूड, कह रहा है मैग्नीट्यूड of gravitational potential on the surface of a planet of radius r is phi. The planet may be considered to be an isolated sphere. Okay. On figure 2.1, sketch the variation of gravitational potential with distance x from the center of the planet for values of x between r and 4r. अच्छे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर. एट द सरफेस आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? फाई. जब आपका r 2r पे चले जाएगा, व्हाट विल हैपन टू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? हाफ हो जाएगा. दिस विल बिकम हाफ. जब आपका r 4r पे चले जाएगा, व्हाट विल हैपन टू योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? phi will become 5 over 4. सर 5 over 4 किस तरह मार्क करें? बेटा देखो, 5 over 4 is what? 0.255. ये क्या है? नेगेटिव 0.55. तो इसका आधा मार्क करना है. 5 बॉक्सेस मार्क करने. 0.25 नेगेटिव 5 समवेयर है. यहाँ पे डॉट लगा दो. कैन यू कनेक्ट दीज डॉट्स? यस, इजी. अब बेटा ये 3 मार्क का सवाल है. लास्ट मार्क आपको किस पे मिलेगा? हाउ विल यू गेट द लास्ट मार्क बच्चे? लास्ट मार्क कैसे मिलेगा? कोई बता सकता है? यू हैव टू मेक श्योर दैट बिफोर आर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट हो. इस तरह सिंपल. आगे बढ़ते हैं. A satellite is in a geostationary orbit above the earth. ठीक हो गया. अच्छा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या है? देखो, एग्जाम में बेटा जो मैं तुम्हें
मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा एग्जाम में, ना मैं तुम्हें बता सकता हूँ एग्जाम में कि क्या आएगा। मैं सिर्फ तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स दे सकता हूँ। जब भी एग्जाम में कोई फेमिलियर चीज देखो, चुपचाप से पेंसिल से वहां पे की पॉइंट लिख लेना। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 24। At time t is equals to 0, the magnitude of the gravitational potential due to the Earth at the location of the satellite is phi. ठीक हो गया। On figure 2.2, sketch the variation of the gravitational potential due to the Earth at the location of the satellite for values of t between time t is equals to 0 and 24। देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है एग्जामिनर। लेट्स से दिस इज योर अर्थ। ये एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट है जिसपे करंटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पाई है। You have to tell how this gravitational potential will vary throughout 24 hours. आपने बताना है how will this gravitational potential vary throughout this 24 hours। बेटा क्या आपको याद है ग्रेविटेशनल सॉरी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स किस तरह बिहेव करती थी? The angular velocity of geostationary satellites is same as the angular velocity of the planet। तो बेटा ये तो प्लैनेट के साथ 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 ही मूव करती रहेगी। तो क्या होगा? इसका मतलब ये है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा। यू विल गेट अ कांस्टेंट लाइन। सर वाई अ कांस्टेंट लाइन? बस देखो ना, प्लैनेट की एंगुलर वेलोसिटी और सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। दे विल बी एट द सेम प्लेस फॉर द रिमेनिंग 24 आवर्स। Hence I straight horizontal line like this। आगे बढ़ते हैं। The electric potential difference between two parallel plates is V as shown in figure 2.3। Okay, distance D है दोनों के बीच में। The distance between the plates is D। The region between the plates is a vacuum। Okay। On figure 4.2, sketch the variation of electric potential with the distance from the positive plate। अब क्या इस्तेमाल करना है? ये ब्रेन। बेटा जब भी पैरेलल प्लेट्स होती है ना इस तरह की, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी। डी को लेफ्ट साइड पे ले आओ, ई इंटू डी इज इक्वल टू वोल्टेज। अब सर हमें ये पता लग गया है कि पैरेलल प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। तो मुझे ये तो पता है कि मेरा ग्राफ लाइन होगा, लेकिन किस तरह की लाइन होगा? अच्छा जी। अब बेटा जब आप पॉजिटिव प्लेट पे होगे ना, जब आप पॉजिटिव प्लेट पे होगे तो आपका वोल्टेज क्या होगा? कंप्लीट वी। जब आप यहाँ पे अर्थ पे होगे योर वोल्टेज विल बी जीरो। सो हाउ कैन वी ड्रॉ अ ग्राफ? At a distance of d, when you are at the positive plate, your voltage is V. When you are at the negative plate or at the earth, your voltage is zero। A line like this। बच्चों ये 7 मार्क्स का पूरा सवाल क्लियर है? किसी को जरा सा भी मसला है तो पूछ लो। आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे। Two metal cuboids, okay, P and Q are in thermal contact with each other। P and Q are in thermal equilibrium। State what is meant by thermal equilibrium। सर थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है कि P and Q are at the same temperature। Since P and Q are at the same temperature, there is no net transfer of thermal energy। लिखवा देता हूँ। You will say thermal equilibrium, thermal capital लिख लेते हैं। Thermal equilibrium means that there will be no बड़ा बड़ा नो net
transfer of heat energy या thermal energy as both P and Q are at same temperature. बेटा पी एंड क्यू अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी नहीं होगी. नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज पी एंड क्यू आर एट द सेम टेम्परेचर. चलो जी देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है. डेटा फॉर पी एंड क्यू इज गिवन इन टेबल 3.1. ठीक है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पी 390 है. मास ऑफ पी 0.54. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्यू इज 910. मास ऑफ क्यू इज 0.37. ओके. Initially, both P and Q are at the same temperature. Okay. P is supplied with 24 kilojoules of thermal energy. अच्छा जी. After some time, P and Q are once again both at the same temperature as each other. Okay. P and Q are perfectly insulated from the surrounding. Okay. Determine the change in temperature of Q. अच्छा जी. थोड़ा सा गौर करेंगे. बेटा व्हाट इज द टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड टू पी एंड क्यू. पी एंड क्यू को टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड हो रही है 24 किलो जूल्स. ओके. सो यहाँ पे लिख दो 24 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3. व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय पी. बेटा पी ने कितनी एनर्जी गेन की होगी. व्हाट इज द मास ऑफ पी 0.54. व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ पी 390. हमने चेंज इन टेम्परेचर निकालना. प्लस व्हाट विल बी द एनर्जी गेन्ड बाय क्यू. मास क्या है क्यू का 0.37. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्यू क्या है 910 इनटू चेंज इन टेम्परेचर. सिंपल. कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस चेंज इन टेम्परेचर. अच्छा यहाँ पे बच्चों का एक सवाल होता है सर आपको कैसे पता कि चेंज इन टेम्परेचर फॉर पी एंड चेंज इन टेम्परेचर फॉर क्यू विल बी सेम. ये दोनों डेल्टा टी सेम होंगे ये आपको कैसे पता. क्या एग्जामिनर आपको बता के गए. नहीं. कैन यू रियलाइज इनिशियली बोथ पी एंड क्यू आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब ये है इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ पी एंड इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ क्यू आर सेम. और बेटा दोनों का फाइनल टेम्परेचर भी सेम हो रहा है. द फाइनल टेम्परेचर ऑफ पी इज इक्वल टू द फाइनल टेम्परेचर ऑफ क्यू. इसका मतलब ये दोनों का चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा. So you can say 24 into 10 is the power of 3 is equals to 0.54 into 300, 162 delta T plus 37 into 910. ये हो जाएगा 336.7 delta T. Can you calculate the value of delta T? Yes sir, easy peasy. क्या हो जाएगा 162 plus 336.7 is equals to your delta T. निकाल लो भाई delta T की वैल्यू क्या आती है. 162 plus 336.7. Delta T comes out to be 48.1 degree centigrade. Obviously, if you want to write it with two significant figures, वो भी possible है. 48 degree centigrade is your change in temperature. आपने कैल्विन में लिखना है तो चेंज इन टेम्परेचर कैल्विन में भी उतना ही आएगा 48 कैल्विन. ओके. चेंज इन टेम्परेचर आइदर डिग्री सेंटीग्रेड में हो कैल्विन में हो सेम ही रहता है. ऑल क्लियर टू एवरीवन. कोई मसला यहाँ पे यू कैन आस्क. हैव वी डन अ मिस्टेक इन द हाँ हमने एक कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है. बेटा ये जो है वो 210.6 है. ठीक है. तो यहाँ पे कर लो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा बाकी सारी वर्किंग सही. दिस कम्स आउट टू बी 44 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट विल बी इक्वल टू 44 केल्विन. इसका कोई और पार्ट है. लेट्स सी. या वी हैव अनदर पार्ट एज वेल. नाइट्रोजन मे बी assumed to be an ideal gas. A fixed amount of nitrogen is contained at a constant pressure of 1.6 into 10 raised to the power of 5.
The variation of volume of the gas with temperature theta of the gas is shown in figure 3.1. अच्छा जी, volume versus theta का ग्राफ given है. Okay. The temperature of the nitrogen gas is increased from 0 to 210 degrees centigrade. Determine the work done on the gas. देखो एग्जामिनर आप लोग के साथ खेल रहा है. छोटा सा ऑन द गैस लिख दिया और 3 मार्क का सवाल कर दिया. जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड. इनिशियली यू आर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अच्छा जी सर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या है? 0.18. दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम. बेटा 210 डिग्री पे वॉल्यूम क्या है? व्हाट? ओ सॉरी. देखो देखो देखो, एग्जामिनर हर तरह से तुम्हारे साथ खेल रहा है इस सवाल. कैन यू रियलाइज दिस इज 200, दिस इज 300. You are covering 100 units in how many boxes? 20 boxes. तो एक बॉक्स किसके इक्वल होगा? 5 यूनिट्स के. तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 बॉक्सेस के बाद यू विल हैव 210. 210 का टेम्परेचर बच्चे आएगा यहाँ पे. साइड ये है. ये आ गया आपका फाइनल वॉल्यूम. ये था आपका इनिशियल वॉल्यूम. कैन यू कैलकुलेट वर्क डन ऑन द गैस? अब अगर शहजाद हो, तुम लोग को ये बात याद हो, वर्क डन ऑन द गैस डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस. सर प्रेशर क्या है नाइट्रोजन का? ये रहा 1.6 10 raised to the power of 5. Okay, 1.6 10 raised to the power of 5. What will be your change in volume? फाइनल वॉल्यूम क्या है? 0.32. इनिशियल वॉल्यूम क्या है सर? 0.18. कैन यू कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस? हाँ जी, वर्क डन बाय द गैस. सर आप निकाल के बता सकते हैं? हम तो बिल्कुल कैलकुलेटर भी नहीं लाए हुए आज. वर्क डन बाय द गैस कम्स आउट टू बी 22400 जूल्स. लेकिन बच्चे ये बाय द गैस है, आपने ऑन द गैस निकालना. हमने क्या पढ़ा है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द गैस. वर्क डन ऑन द गैस किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेटिव 22400 जूल्स. यहाँ पे लिख दो 22400 जूल्स. Now you have to determine the number of molecules n of the nitrogen gas. अब आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n ऑफ द नाइट्रोजन गैस निकालना है. किस तरह निकालोगे? इससे आसान और क्या सवाल होगा? You will say PV is equals to NKT. प्रेशर क्या था? 1.6 into 10 raised to the power of 5. Let's say I consider the volume at 0 degree centigrade. 0 degree centigrade पे वॉल्यूम क्या था? 0.18. आपने कैपिटल एन निकालना है. बेटा के की वैल्यू क्या है? अगर कोई भूल जाता है के की वैल्यू, वो कहाँ से देखेगा? डेटा बुकलेट से. यहाँ पे लिखा हुआ 1.38 10 raised to the power of -23. ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू है. 1.38 into 10 raised to the power of -23. टेम्परेचर की जगह बेटा क्या आ जाएगा? कैन यू रियलाइज ये 0.18 का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था. 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर कैल्विन में करेंगे तो हाउ विल वी राइट इट? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15. कैल्विन कितना हो जाएगा? 273.15 लिख दो यहाँ पे. 273.15. Can you calculate capital N? Yes. 1.6 into 10 is the power of 5 into 0.18 divided by 1.38 10 is the power of -23 into 273.15. Can you calculate the number of molecules? हाँ जी शहजादों, निकाल सकते हो. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स comes out to be 7.6 into 10 is the power of 24. Easy peasy. आगे बढ़ते. The mass of a nitrogen molecule is this. अच्छा, एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास ये है. You have to calculate the CRMS of a nitrogen molecule at 110 degree centigrade. Sit back and relax. बेटा हमने क्या पढ़ा है? Kinetic energy is equals to 3/2 kT. Okay. Kinetic energy का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mc स्क्वायर 3/2 kT. कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों? Is anything getting cancelled out? जी सर बिल्कुल. 2 cancel out. C square is equals to 3 kT
डिवाइडेड बाय मास। अब आपने सी स्क्वायर नहीं निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट सी आर एम एस। बच्चे सी आर एम एस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर। व्हाट विल यू डू? टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सी आर एम एस ही हो जाएगा 3 k T/m। अच्छा जी, के की वैल्यू क्या है अभी बता रहा हूँ, 1.38 इंटू 10⁻⁻23। बेटा अब एग्जामिनर ने आपके साथ यहाँ पे एक मस्ती की है। टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, एंड दिस टेम्परेचर टी इज योर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज इन कैल्विन्स। तो कैल्विन्स में किस तरह कन्वर्ट करोगे इसको? 210 प्लस 273.15। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल गिवन है जी सर, गिवन है 4.7 इंटू 10⁻⁻26। 4.7 10⁻⁻26। कैन यू कैलकुलेट द CRMS? हाँ जी, वेलोसिटी निकाल सकते हो। द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 650 मीटर्स पर सेकेंड। इस पूरे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ। A small crystal is made to vibrate with simple harmonic motion. The variation with time t of the displacement x of one surface of the crystal from its equilibrium position is shown in figure 4.1। ठीक है, displacement versus time का ग्राफ गिवन है। Show that the angular frequency of the vibration of the surface is this। आपने क्या निकालना है बच्चों? क्या निकालना है बताओ? You have to calculate the value of W। सर W का कोई फॉर्मूला हुआ करता था जी? बिल्कुल, 2 पाई/कैपिटल T। अच्छा जी, टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे? 0.15 इंटू 10⁻⁻6। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 0.15 इंटू 10⁻⁻6। क्या आ रहा है आंसर? लेट्स डू दैट। 2 पाई डिवाइडेड 0.15 इंटू 10⁻⁻6। दिस कम्स आउट टू बी 4.2 10⁻⁷ radians per second। Determine the maximum acceleration of the vibration of the surface। बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता था? एक्स नॉट इंटू डब्ल्यू स्क्वेयर। क्या आपके पास एम्पलीट्यूड है? जी सर बिल्कुल है, ये रहा एम्पलीट्यूड। व्हाट विल दिस वैल्यू बी? चलो जूम इन करके देखते हैं। कैन यू रियलाइज यू आर गोइंग फ्रॉम 0 to 50 इन हाउ मेनी बॉक्सेस? 0 to 50 कितने बॉक्सेस में जा रहे हो बच्चों? 10 बॉक्सेस में, 10 स्मॉल बॉक्सेस में। एक बॉक्स कितने यूनिट्स के इक्वल होगा बच्चों? 5। दिस विल बी इक्वल टू 40। आपका एक्स नॉट 40 के इक्वल है। ओके ओके ओके, लिख देते हैं 40। और साथ में कोई यूनिट है? 10⁻⁻6। ओके, 10⁻⁻6। डब्ल्यू किसके इक्वल है? 4.2 10⁻⁷। 4.2 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? जी सर, -6 इंटू 4.2 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। This comes out to be 7.1 10⁻10 ms-2। This is basically what? This is basically your maximum acceleration। Simple as that, कुछ भी हमने यहाँ पे complicated नहीं किया है बच्चों। अब आगे बढ़ा जाए। चलो, let's move ahead। The crystal may be modeled as a single mass। Okay, mass given है हमें crystal का, that vibrates as shown in figure 2 4.1। Calculate the total energy of the vibration। You have to calculate the total energy of the vibration। How will you do that? 1/2 m w square x naught square। बेटा अगर आपको टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन निकालनी है, हाउ विल यू डू दैट? 1/2 m w square x naught square। ओके, 1/2 into the mass that is 2.4 10⁻⁻4। w की वैल्यू क्या है बच्चों? ऊपर आओ, 4.2 इंटू 10⁻⁷। 4.2 10⁻⁷ होल स्क्वायर इनटू एक्स नॉट की वैल्यू क्या है?
ये रही 40 into 10 raised to the power of minus 6. 40 into 10 raised to the power of minus 6 का whole square. Can you guys calculate the total energy? Total energy में बस calculation heavy है, बाकी कुछ भी नहीं है. The total energy comes out to be 340 joules. Simple. Let's further move ahead. The crystal generates ultrasound waves that are used to obtain diagnostic information about internal structures. ठीक है भाई, अल्ट्रासाउंड वेव्स बिल्कुल यूज होती हैं टू ऑब्टेन डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर्स. द क्रिस्टल इज मेड फ्रॉम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल. ओके, एक्सप्लेन हाउ द क्रिस्टल इज मेड टू वाइब्रेट. ये जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है या क्रिस्टल है, उसको हम वाइब्रेट किस तरह कराते हैं? By applying an alternating potential difference across the crystal. This causes the crystal to change shape, or it causes the crystal to vibrate. You will say by applying an alternating by applying an alternating potential difference across the crystal. This causes the crystal this causes the crystal to change shape and vibrate. Simple. This causes the crystal to change shape and vibrate. Simple. आगे बढ़ते हैं. Is this by this? चलो जी आगे बढ़ते हैं. A beam of ultrasound wave is incident. अच्छा जी, एक beam of ultrasound wave is incident on a muscle bone boundary. Data for the muscle and bone are given in table 4.1. ठीक है भाई, एक beam of ultrasound है जो incident है on a boundary of muscle and bone. ठीक हो गया. So calculate the percentage of intensity of ultrasound beam that is transmitted at this boundary. आपने क्या निकालना है? How much ultrasound is transmitted? Percentage of transmission निकालना. Do you remember something known as intensity reflection coefficient? किस तरह निकालते थे? Z2 minus Z1 whole square divided by Z2 plus Z1 whole square. This used to be what? Intensity reflection coefficient. अब लेट से मैं बोन को हमारा मीडियम 2 कर देता हूं, मसल को मीडियम 1 कर देता हूं. हाउ विल यू कैलकुलेट Z1? डेंसिटी इनटू स्पीड. डेंसिटी क्या है? 110. स्पीड क्या है? 1600. व्हाट विल दिस कम आउट टू बी? क्या आ जाएगा? 110 इंटू 1600. This comes out to be 1.76 10 raised to the power of 6. 1.76 10 raised to the power of 6. ये क्या आ जाएगा बच्चों? 1.76 into 10 raised to the power of 6. Z2 क्या आ जाएगा? Density, that is 1900 into 4100. This comes out to be 7.79 10 raised to the power of 6. Can you calculate intensity reflection coefficient? Yes. Z2 क्या है? Z2 क्या है बेटा यहाँ पे? What is the value of Z2 here? हाँ जी, Z2 की वैल्यू को बता सकता है क्या आ रही है यहाँ पे? What is the value of Z2? बच्चे Z2 की वैल्यू, if I calculate Z2 की वैल्यू here, what is that equal to? हाँ जी, Z2 की वैल्यू अभी बोर्ड पे निकाली. Z2 is equals to what? 7.79 10 raised to the power of 6 minus 1.76 into 10 raised to the power of 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? यस, डिवाइडेड बाय 7.79 10 raised to the power of 6 plus 1.76 10 raised to the power of 6.
का होल स्क्वायर। कैन यू कैलकुलेट दिस? हाँ जी, इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो? या दिस कम्स आउट टू बी 0.4 और 40%। इसका मतलब क्या है? इफ योर अल्फा कम्स आउट टू बी 40%, इसका मतलब क्या है? 40% ऑफ अल्ट्रासाउंड्स आर रिफ्लेक्टेड। इसका मतलब क्या है? 40% ऑफ अल्ट्रासाउंड्स आर रिफ्लेक्टेड। कितनी ट्रांसमिट होंगी? 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60% विल गेट ट्रांसमिटेड। आई बात समझ में बच्चों? यहाँ पे कोई मसला तो? अच्छा, लेट्स सी दिस. The capacitor of capacitance C1 is connected in series with a second capacitor of capacitance C2. Show that the combined capacitance of the two capacitor is given by this formula. अच्छा जी, तो हो क्या रहा है? You have capacitance C1, ये connected है series में with capacitance C2. You have to show that the total capacitance is equal to this equation. सर कैसे करेंगे? Let's say you have a battery of voltage V here. So हमें एक बात पता है बेटा, that the charge across the battery will be the same as the charge across capacitor 1 and it will be the same as the charge across capacitor 2. तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, you can write this, you can say, you can basically say, यहाँ पे आप लिख सकते हो, you can basically say that the charge across capacitor 1 is equals to the charge across capacitor 2, that is equals to the total charge. यहाँ पे oh, why is this struggling today? You can say that the total charge is equals to the charge across capacitor 1 plus the charge across capacitor 2. This is your first equation. ठीक है भाई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. The charge across capacitor 1 is equal to charge across capacitor 2 is equals to the total charge. Secondly, आप क्या लिखोगे? You will say that the total voltage across the battery is equals to the voltage V1 plus voltage V2. देखो, हमें दो चीजें पता है. वी नो टू थिंग हियर. कौन कौन सी दो चीजें पता है सर भाई? एक तो ये पता है कि चार्ज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 1 इज इक्वल टू द चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 2. सिंपल. और एक चीज हमें ये पता है कि वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2. सेकेंड इक्वेशन. सर अब इसका क्या करें? बेटा, क्या आपको कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला याद है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर वोल्टेज. कहना है मैं एक वोल्टेज द सब्जेक्ट हियर, वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटेंस. तो एक काम करते हैं, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस. टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू व्हाट? Charge on 1 divided by the capacitance of 1 plus charge of 2 divided by the capacitance of 2. फिर क्या करेंगे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द कैपेसिटेंस. चार्ज कॉमन ले लो यहाँ पे, 1/C1 1/C2. चार्ज चार्ज कैंसिल आउट. 1/CT is equals to 1/C1 plus 1/C2. Is this derivation clear to all of you? हाँ जी, ये derivation clear है. Is this derivation clear? एक सेकंड. यस, परफेक्ट है. चलो जी, आगे बढ़ते. अच्छा जी. Three identical capacitors, each of capacitance C, are connected in a network as shown. Okay, ये three identical capacitors यहाँ पे connected है. The variation of charge with potential difference between the terminals X and Y is shown in figure 5.2. अच्छा जी, charge versus potential difference का ग्राफ given है between terminals X and Y. Okay.
शो दैट C इज इक्वल्स टू 44 माइक्रोफैरड। 3 मार्क का सवाल। अच्छा सर किस तरह निकालेंगे? बहुत 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 इजी है, बस ध्यान देते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको ये बात याद है, द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू कैपेसिटेंस? कैन यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ? यस, दिस इज 0 comma 0, दिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस में 6, वाई एक्सिस में 400। कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगी? 400 माइनस 0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0। क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे? हाँ जी, एक सेकंड कैलकुलेट करते हैं। 400 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ माइनस 6 divided by 6. This comes out to be what? The total capacitance is equal to 6.6 into 10 raised to the power of minus 5. अगर मैं इसको आगे लेके जाऊं, this is 66.6 into 10 raised to the power of minus 7. That is roughly 67 microfarads. बच्चों अभी तक आंसर नहीं आया। ये क्या है? This is the total capacitance between x and y. आपने तो वैल्यू ऑफ सी निकालनी। सर वैल्यू ऑफ सी कैसे निकालें? थोड़ा सा गौर करो। दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर, बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड इन सीरीज। टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इस ब्रांच की? 1 ओवर सी प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू 1 ओवर सी टी। सी टी किसके इक्वल आ जाएगी? हाँ जी, सी ओवर 2। इसका मतलब ये है, आई कैन ड्रॉ दिस सर्किट लाइक दिस, कैपेसिटेंस सी ओवर 2। कनेक्ट कर दो बच्चों इस तरह। अगर दो कैपेसिटर्स पैरेलल में तो आप क्या करोगे? सी प्लस सी ओवर 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1.5 सी। ये है आपकी टोटल कैपेसिटेंस। ओके, so you can say 1.5 C is equal to the total capacitance 66 microfarad. C किसके इक्वल हो जाएगा? 66 डिवाइडेड बाय 1.5। क्या आंसर आ रहा है? डिवाइडेड बाय 1.5, योर कैपेसिटेंस का आंसर कम्स आउट टू बी 44 माइक्रोफैरड्स। इतना सिंपल था ये सवाल। लेट्स फर्दर मूव अहेड। The capacitor network in figure 5.1 is charged and then connected to a resistor of resistance 54 kilo ohms. Okay. The capacitor network discharges through the resistor. Okay. Determine the time constant of the circuit. अच्छा जी, time constant of the circuit निकालना है। कैसे निकालोगे? Total resistance into the total capacitance. Total resistance क्या है? 54 into 10 is the power of 3. Total capacitance क्या है बेटा? रेशो से भी फुल मार्क्स मिलेंगे खुजैमा, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अब डिपेंड करता है रेशो किस तरह लगाते हो, कितनी अच्छी तुम्हारी मैथ्स है। अच्छा जी, टोटल कैपेसिटेंस हमने क्या निकाली थी? 67 या 66.6 इंटू 10 इज द पावर ऑफ माइनस 6। सो 66 इंटू 10 इज द पावर ऑफ माइनस 6। व्हाट डज योर आंसर कम्स आउट टू बी? निकालो जरा क्या आता है। 54 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3 into 66 into 10 is the power of minus 6. This comes out to be 3.6 seconds is your time constant. इससे आसान और क्या होगी फिजिक्स तुम लोगों की? लिटरली सबसे इजीएस्ट थिंग पॉसिबल। अच्छा जी, अब आगे क्या करना है भाई? व्हाट डू वी हैव टू डू फर्दर? आगे बढ़ते हैं, चलो लेट्स सी दिस। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर द डिस्चार्ज करंट to reduce to 15% of its initial discharge कर। ओके, देखो हो क्या रहा है। इनिशियली आपका करंट होगा आई नॉट, ठीक है। डिटरमाइन द टाइम टेकन फॉर द डिस्चार्ज करंट टू रिड्यूस टू 15% ऑफ इट्स इनिशियल डिस्चार्ज करंट। 15% ऑफ इट्स इनिशियल डिस्चार्ज करंट क्या हो जाएगा? 1.5 आई नॉट। क्या आपने डिस्चार्ज इक्वेशंस पढ़ी हैं? आई इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस टी ओवर टाउ। पढ़ी है ये इक्वेशन या नहीं, या भूल चुके हो? आप कहोगे सर ने पढ़ा ही नहीं है। ये तो तुम लोगों की बिल्कुल ही खूबसूरत बातें हैं। आई की जगह क्या रख दोगे? आई इज योर करंट एट द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज 0.15 आई नॉट।
आई नॉट ऐसे ही आ जाएगा, ई माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। टाउ की वैल्यू क्या निकालिए, 3.6। कैंसिल कैंसिल, 0.15 इज इक्वल टू ई माइनस टी ओवर 3.6। व्हाट विल यू डू, टेक एल एन ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, अगर दोनों साइड्स पे आप एल एन लोगे तो क्या होगा, एल एन 0.15 एल एन ई माइनस टी ओवर 3.6, कैंसिल कैंसिल, एल एन 0.15 इंटू 3.6 नेगेटिव इज इक्वल टू योर आंसर ऑफ टाइम। क्या कोई शहजादा ये आंसर निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है अभी। दिस कम्स आउट टू बी 6.8 सेकेंड्स एज योर टाइम। इस पूरे सवाल में कोई मसला है तो विदाउट हेजिटेशन, हाँ जी, कोई ऐसी चीज जो नहीं। बेटा कुछ सवालों में होता है, कुछ में नहीं। कुछ सवालों में एरर कैरी फॉरवर्ड होता है, कुछ में नहीं होता। इज दिस क्लियर टू एवरीवन एल्स? हाँ जी, खुजैमा उमर बच्चों समझ आई ये बात। An electric field and a magnetic field are used to form a velocity selector। ओके हो गया, वेलोसिटी सेलेक्टर हमने पढ़ा था। वेलोसिटी सेलेक्टर में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन या आपके आयंस अनडिफ्लेक्टेड पास करते थे। ओके, charged ions, charged particles called ions pass into a region of uniform electric and magnetic field that is between parallel plates as shown in figure 6.1। Okay. The potential difference between the plates of the velocity selector is V and the separation of the plates is D. The magnetic flux density is B. Okay. Show that the speed of the ions that pass undeviated through the velocity selector is given by this formula। बेटा अब जो आयंस वेलोसिटी सेलेक्टर से अनडिफ्लेक्टेड पास करते थे उनका क्या होता था, उनकी इलेक्ट्रिक फोर्स वाज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट विल यू से, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरह निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स किस तरह निकालोगे, बी क्यू वी, कैंसिल कैंसिल। बेटा अब अगर आप ये रियलाइज करो तो ये क्या है, ये पैरेलल प्लेट्स है। पैरेलल प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किस तरह निकलती थी बच्चों, वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस डी। यहाँ पे कर दो वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस डी, बी ओवर वेलोसिटी यू। यहाँ पे वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बी को डिवाइड कर दो यहाँ पे, यू इज इक्वल टू वी ओवर बी, डी इज योर आंसर। इजी। Positive ions with kinetic energy this and mass this pass undeviated through the velocity selector when v is equals to this and d is equals to this। Calculate p। अच्छा जी, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा। अब देखो एग्जामिनर ना बड़ा ही चालाक है, उसने चार क्वांटिटीज दे दी हैं फिर भी कम है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या है, 4.1 10 raised to the power of -17 जूल्स। मास क्या है बेटा, 3.2 इंटू 10 raised to the power of -27 kg। और क्या गिवन है सर, और हमें वोल्टेज गिवन है दैट इज 980 वोल्ट्स, और हमें डी गिवन है दैट इज इक्वल टू 3.6 10 raised to the power of -2 मीटर्स। निकालना क्या है, निकालना है यू। ओ हो, अब यहाँ पे आ जाओ। ओ सॉरी, निकालना हमने क्या है, सॉरी नॉट यू, नॉट यू नहीं निकालना हमें, मैं गलत कह रहा हूँ, हमें बी निकालना है। ओके ओके ओके, क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है सर, ये गिवन है फॉर्मूला। कैन आई मेक बी द सब्जेक्ट हियर, यस, बी इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय यू इनटू डी। क्या आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है, जी सर है। क्या आपके पास डी की वैल्यू है, जी सर। बी निकालने के लिए कौन सी वैल्यू मिसिंग है, वेलोसिटी यू की वैल्यू। सर ये तो हम फंस गए, एग्जामिनर ने बुरा फंसा दिया। नहीं फंसाया बेटा बुरा,
काइनेटिक एनर्जी और मास को यूटिलाइज करके आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू है? 4.1 10 raised to the power of -17 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास की वैल्यू क्या है? 3.2 10 raised to the power of -27 into velocity square. Can you calculate the velocity? Yes, 4.1 10 raised to the power of -17 into 2. Okay, 3.2 10 raised to the power of -27 taken under root. What does your velocity या u comes out to be? इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में डालूं तो 1.6 10 raised to the power of 5 meters per second is your velocity. वेलोसिटी आ गई बेटे। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, अब कैसे निकलेगी? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय ud। v डिवाइडेड बाय ud। सर v की वैल्यू है, यस 980। u की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 raised to the power of 5। d की वैल्यू क्या है? 3.6 10 raised to the power of -2। हाँ जी, आ जाएगा आंसर। शहजादो, आ जाएगा आंसर या नहीं आएगा? 3.6 10 raised to the power of -2। आंसर आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का 0.17। कोई सवाल है तो पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 0.17 इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई। A proton passes undeviated through the velocity selector. An alpha particle enters the velocity selector at the same speed as the proton. Okay. State how the expression in A predicts that the alpha particle also passes undeviated through the velocity selector. बेटा, एक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल में क्या फर्क है? एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल में क्या डिफरेंस है? प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? +1। अल्फा पार्टिकल का क्या चार्ज होता है? +2। बट अगर आप एक बात देखो तो इस वेलोसिटी के फॉर्मूले में तो चार्ज की कहीं जगह ही नहीं है। वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना? वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल will pass undeviated as well. Also, एक और चीज है, प्रोटॉन का मास होता है u, दैट इज द एटॉमिक मास यूनिट। अल्फा पार्टिकल का क्या मास होता है? 4u। बट बेटा, मास भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में। दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड चार्ज, that's why alpha particle will pass through undeviated. You will say the expression in A is independent of mass and charge. Hence, alpha passes undeviated. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। By reference to figure 6.1 and to the forces acting on the positive ion, determine the direction of the magnetic field. Explain your answer. By reference to figure 6.1 and to the forces acting on positive ion, determine the direction of the magnetic field. आराम से सुकून से हम काम करते हैं। बेटा, लेट्स से यू हैव अ पॉजिटिव आयन हियर। लेट्स से ये पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव आयंस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे लगेगी? पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ आ गई? डाउनवर्ड। इस इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए यू मस्ट हैव एन अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स, है ना? ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? एक अपवर्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब क्या आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है? इफ योर, अच्छा यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule. If your thumb points in the direction of force,
आयंस की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द राइट। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टुवर्ड्स द राइट। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड का थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, सेकंड फिंगर करंट टुवर्ड द राइट पॉइंट कर रही है, फर्स्ट फिंगर दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पॉइंट करेगी? बता सकते हो? इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड विल पॉइंट इनटू द पेज। अब इसको लिखना किस तरह है, सारा मैजिक उसी का है। 3 मार्क का सवाल है। हाउ विल यू राइट दिस आंसर? First of all, you will say electric force acts downward, so the magnetic force will act upward. ये आप लिखोगे since electric force acts downwards, magnetic force will act upwards. Magnetic force acts upwards. उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद क्या लिखोगे? देखो मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी टू बैलेंस आउट द डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द पॉजिटिव आयंस. देन यू विल से अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, if current is pointing towards the right, force is pointing towards the top, magnetic field will point into the page. लिख दो ये. ओहो कहाँ गया? You will say, you will say, according to Fleming's left-hand rule, according to, according to Fleming's left-hand rule, left-hand, if force points upward, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? थम, बिकॉज थम आप अपवर्ड पॉइंट कर रहे हो, एंड current points from लेफ्ट टू राइट. ये इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? सेकंड फिंगर, देन द फर्स्ट फिंगर, एंड देन द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इनटू द पेज. Hence magnetic field is into the page, is into the page. Simple. अब आगे देखते हैं. द पॉजिटिव आयंस इन बी एंटर द वेलोसिटी सेलेक्टर विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी. ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ द स्केच ऑफ these ions. इसका मतलब क्या है? कि आपकी वेलोसिटी ऑफ द पॉजिटिव आयंस इज इंक्रीजिंग. अब बेटा बिल्कुल शुरू में आ जाओ. अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ कौन सी फोर्स इंक्रीज होगी? मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रही है? टॉप साइड पे. मैग्नेटिक फोर्स अगर टॉप साइड पे लग रही है बच्चे, तो आपके पॉजिटिव आयंस कहाँ चले जाएंगे? टूवर्ड्स द टॉप. बाकी तो खैर डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं थी. आई हैव जस्ट ड्रॉन इट फॉर एक्सप्लेनेशन. सिर्फ आपको ये बना. ऑल गुड. हम्म. ओके. यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला है यहाँ पे? तो बच्चों उमर एंड कौन है, खुजैमा, पूछ लो बच्चों, कोई मसला है? कोशिश मैंने की है बिल्कुल बच्चों की तरह समझाऊं. गुड है. चलो. इजी. चलो यार अल्लाह का शुक्र है. बस यही चाहिए. चलो. स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. भाई फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है सर, आप बता सकते हैं? Faraday's law of electromagnetic induction states that induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linkage. We'll say induced EMF is directly proportional to the rate of
change of magnetic flux linkage. सिंपल। आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है बच्चों? A metal rod is accelerated uniformly from rest. मतलब आपकी initial velocity is zero and you have a constant acceleration into a uniform magnetic field as shown in figure 7.1. ठीक है, एक uniform magnetic field है. The rod has length L and magnetic flux density of B. Okay. An electromotive force EMF is induced in the rod. The variation with time t of the induced EMF is shown in figure 7.2. अच्छा जी, EMF versus time का ग्राफ आपको given है. You can see EMF is directly proportional to time. This is your first result. Okay. Explain how figure 7.2 shows that EMF is proportional to the velocity of the rod. हमने ये show करना है कि EMF is directly proportional to the velocity of the rod. Can you humbly realize that your initial speed is zero? We can apply this formula. V is equals to U plus AT. Initial speed zero, ये cancel out. V is equals to AT. अब acceleration क्या है? Constant है. अगर एक्सेलरेशन बच्चे कांस्टेंट है, यू कैन रिप्लेस दैट विद अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी साइन. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. और बेटा ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया. वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ईएमएफ भी टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. व्हाट विल बी योर फाइनल रिजल्ट? ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अब इसको लिखेंगे किस तरह? हाउ विल यू राइट दिस? You will say that velocity is directly proportional to time. यहाँ पर लिखें. Since acceleration is constant, velocity is directly proportional to time. Perfect. उसके आगे क्या करेंगे? Velocity is directly proportional to time. इसके आगे क्या लिखेंगे? Hence EMF becomes directly proportional to velocity. Hence EMF becomes directly proportional to V. Simple. आगे बढ़ते भाई. Let's move ahead. Let's read the question again. क्या लिखा हुआ है? Use Faraday's law to show that the variation of E with time can be given with this. Okay. You have to show that EMF can be given like this, where A is the acceleration of the rod. बेटा EMF का क्या फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू Faraday's law? Change in magnetic flux divided by change in time. अच्छा जी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स सर किस तरह लिख सकते हैं आप? B इंटू ए डिवाइडेड बाई चेंज इंटू टाइम. बेटा अब आप क्या देख सकते हो, पूरे फॉर्मूला में कहीं भी एरिया का यूनिट ही नहीं है, एरिया का वेरिएबल ही नहीं है. तो आपका मतलब ये फाइनल आंसर नहीं है. सर अब एरिया का क्या करूं मैं? कुछ भी नहीं करो, थोड़ा सा गौर करो. एरिया क्या है? एरिया इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रॉड. एरिया इज द एरिया कवर्ड बाय दिस रॉड. द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल. हमें गिवन है, कहाँ गिवन है? ये मसला सिर्फ एक है. यू डोंट नो द विथ ऑफ दिस रॉड. इस विथ को मैं W से मार्क कर देता हूँ. यू डोंट नो द विथ ऑफ दिस रॉड. अब विथ ऑफ दिस रॉड किस तरह निकालेंगे? यू अज्यूम V इज इक्वल टू U प्लस AT. सिंस आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा? जीरो. V इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम. अब सर ये W कैसे निकालूं? W is your distance. Distance is equals to what? Velocity, that is AT into the change in time. बेटा ये डेल्टा टी या चेंज इन टाइम क्या है? ये बेसिकली हमें बता रहा है कितनी देर के लिए ये रॉड मूव कर रही है. अगर लेट से ये रॉड 1 सेकंड के लिए मूव कर रही है, डेल्टा टी हो जाएगा 1 सेकंड. सिंपल. तो ये हमारा डिस्टेंस, ये विथ हो गई. दैट इज AT डेल्टा टी. टोटल एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विथ.
L-A-T डेल्टा T, यहाँ पे यही रख दो बेटा, B × L-A-T डेल्टा T डिवाइडेड बाय डेल्टा T, कैंसिल कैंसिल, EMF किसके इक्वल आ जाएगा, B-L-A-T। सिंपल, आई बात समझ में, यस और नो। हाँ जी, बात समझ आई, यस और नो। अब बताओ, अब भी क्लियर है, ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड। द लेंथ ऑफ द रॉड इज दिस। अच्छा जी, लेंथ ऑफ द रॉड आपको गिवन है, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड भी गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। किस तरह निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, लेट्स से आप कोई पॉइंट ले लेते हो, लेट्स से मैं बिल्कुल ही एक्सट्रीम वाला पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू क्या है, 0.3, मत भूलना ये मिली वोल्ट्स, 10⁻⁻⁻। टाइम की वैल्यू क्या है, 2 सेकेंड्स। ओके, लेट्स राइट इट डाउन, 0.3, 10⁻⁻⁻। बी हमने निकालना है, लेंथ है 0.45, एक्सेलरेशन है 7.8, टाइम की वैल्यू क्या है 2। कैन यू कैलकुलेट बी, 0.3 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 0.45, 7.8 इंटू 2। कैन यू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। हाँ जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकल आ सकती है, यस, 4.3 10⁻⁻⁵, 4.3 इंटू 10⁻⁻⁵। सिंपल, आगे बढ़ते। डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन। भाई फोटोन का मतलब क्या होता है, फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इट इज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। Okay, let's further move ahead. A laser emits a red light of single wavelength. The light is produced when electron moves from a higher energy level to a lower energy level. जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे मूव करते हैं, फोटॉन एमिट करते हैं। The difference in the energy levels is 1.6 electron volts. Calculate the wavelength of light. बेटा एनर्जी ऑफ फोटॉन की क्या इक्वेशन होती थी, Hc/λ। एनर्जी क्या है, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज योर एनर्जी। 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। एच किसके इक्वल है, 6.63, 10⁻⁻⁻34। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 इंटू 10⁻⁸। कैन यू कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ आ जाएगी, हाँ जी, वेवलेंथ कम्स आउट टू बी 6.3 10⁻⁻⁷। निकाल लो 6.3 10⁻⁻⁷ meters. The power of beam emitted by the laser is this. Calculate the number of photons per unit time emitted by the laser. अच्छा जी, हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इमिटेड बाय द लेजर निकालने हैं, किस तरह निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय द लेजर पर यूनिट टाइम। बहुत बहुत इजी है। डू यू हैव द पावर, यस। डू यू हैव द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यस। डिवाइड कर दो दोनों को, 1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ वन फोटोन, 1.96 10⁻⁻19। क्या आंसर आता है, कैलकुलेट कर लो नंबर ऑफ फोटॉन्स को। इससे आसान और क्या सवाल देगा एग्जामिनर तुम्हें। 3.2 इंटू 10⁻16। और अगर अभी भी कोई पूछ रहा है सर इस तरह क्यों किया है, बेटा ये देखो, ये पावर क्या है, दिस इज द पावर पर यूनिट टाइम। कैन यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर पर यूनिट टाइम, यस, एनर्जी ऑफ द लेजर इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, वही आ जाएगी एनर्जी 1 इंटू 10⁻⁻²। ये आपकी क्या है, एनर्जी ऑफ लेजर divided by the energy of one photon gives you the number of photons. Simple. The photons are incident normally on a surface. Okay.
Half of the number of photons are absorbed by the surface and other half are reflected. Calculate the average force. So the best way to solve this question is to develop two scenarios. दो scenarios develop कर लो. Scenario number one. Scenario number one में क्या है भाई, आपके पास एक metal plate है, photons आ रहे हैं with momentum p and they get absorbed. Initial momentum of photon is p. Final momentum of photon is zero. Let's say vectors towards the right are considered to be negative. Vectors towards the left are considered to be positive. Can you calculate the force here? Yes. Force is equals to change in momentum over change in time. और बेटा ये कितने फोटॉन्स के साथ हो रहा है? हाफ ऑफ द फोटॉन, सो 0.5 इनटू द टोटल नंबर ऑफ फोटॉन. लेट्स से टोटल नंबर ऑफ फोटॉन को मैंने n कह दिया, दैट इज 3.210 इज पावर 6. तो ये हो गई फोर्स आपकी, हो गई चेंज इन मोमेंटम इज p 0 minus p, final momentum minus initial momentum multiplied by 0.5 capital N. This comes out to be 0.5 np is your first average force. अच्छा जी, सिनेरियो टू में क्या हो रहा है सर? सिनेरियो टू में इफ यू रियलाइज you have photons coming and hitting the metal plate, the initial momentum is p, then they are getting rebounded with the same momentum p. ओके, अगेन यहाँ पे सेम कन्वेंशन फॉलो करते हैं. फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम. हाफ ऑफ द फोटॉन्स के साथ इस तरह हो रहे 0.5 इंटू एन. फोर्स नंबर टू क्या हो जाएगी? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट इज पॉजिटिव. Initial momentum is towards the right, it is negative. Change in momentum over time 0.5 n. This comes out to be 2p into 0.5 n. This comes out to be Pn. This is your force 2. आपकी टोटल फोर्स क्या हो जाएगी? टोटल फोर्स is equals to Pn plus 0.5 Pn. That is 1.5 Pn. N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रख दिए n की जगह पे. मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह निकालोगे? Momentum of electron is equals to the energy of electron divided by the speed of light. Energy of electron क्या है भाई? Energy of electron क्या है? 1.96 into 10 raised to the power of 1.96 into 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 divided by the speed of light 3 into 10 raised to the power. What does your momentum comes out to be? ये क्या आ गया? Momentum comes out to be 1.05 into 10 raised to the power of minus 27. मोमेंटम आ गया, कैपिटल एन भी है, टोटल फोर्स निकाल सकते हो बच्चों. यस, टोटल फोर्स इज इक्वल टू 1.5. कैपिटल एन की वैल्यू क्या थी? 3.2 10 raised to the power of 16. और मोमेंटम की वैल्यू क्या है? 1.05 10 raised to the power of minus 27. अब इंशाल्लाह ताला तुम लोग को समझ आ जाएगी. दिस कम्स आउट टू बी 5 into 10 raised to the power of minus 11 न्यूटन. आ गई बात समझ? हाँ जी, उमर एंड खुजैमा. अब मैंने थोड़ा सा इजी करके लिख दिया है, होपफुली ये समझ आ गई. लेट्स फर्दर मूव अहेड. प्लूटोनियम 193, let's increase the thickness now. 19384 is an unstable nuclide. A nucleus of polonium 193 decays to a nucleus of lead by emitting an alpha particle. ठीक है. Radioactive decay is both random and spontaneous state. What is meant by random? अब ये बच्चों वाली डेफिनेशन है. रैंडम का क्या मतलब होता है? Cannot predict how many radiations will be emitted per unit time. Cannot predict when a particular nucleus will decay. ये लिख लो. Cannot predict when a particular nucleus will decay. When a
particular nucleus will decay. स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है भाई? स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? Decay is not affected by external environmental factor. Decay is not affected by external environmental factors. Easy peasy. अच्छा जी, what is the meaning of half life? Define half life. बच्चों, half life का क्या मतलब होता है? Time taken for activity to half. Time taken for activity to half. आगे बढ़ते हैं भाई. Data for the binding energy per nucleon of the particles involved in the decay of a nucleus of polonium are given in the table. Okay. Determine the energy in electron volts released when a nucleus of polonium decays into a nucleus of lead. बेटा एनर्जी रिलीज किस तरह निकालते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड? बहुत बहुत इजी है. यू विल टेक द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. ओके. प्रोडक्ट्स में आपके पास क्या है? लेड एंड अल्फा पार्टिकल्स. लेड्स में कितने न्यूक्लियन है? 189 मल्टीप्लाइड बाय द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.826. बेटा अल्फा पार्टिकल में कितने न्यूक्लियन है? 4 मल्टीप्लाइड बाय द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 7.70 7.074 माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है? 193 multiplied by 7.774. Can you calculate the answer here? हाँ जी, कोई शहजादा है जो आंसर निकालेगा? The answer comes out to be 7.03 electron volts is your answer of energy. Simple. अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं. A pure sample of polonium contains N naught nuclei. After a time t, the sample contains N nuclei of polonium. Okay. The variation of ln n over n naught with time t is shown in figure 9.1. ठीक है सर. ln n over n naught versus time का ग्राफ आपको गिवन है. ओके. State the name of the quantity that is represented by the magnitude of gradient of the line in figure 9.1. बेटा एग्जामिनर पूछ रहा है इस लाइन का ग्रेडियंट क्या क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है? अच्छा, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है? n is equals to n naught e minus lambda t. Take n naught to the other side is equals to e minus lambda t. Take ln on both sides, n over n naught. ln e minus lambda t. कैंसिल कैंसिल. क्या हो जाएगा? ln n over n naught is equals to minus lambda t. This is plotted on the y-axis. This is plotted on the x-axis. Gradient किसके इक्वल हो जाएगा? Gradient is equals to the negative of decay constant. लेकिन हमने बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? देखो बेटा, ग्रेडियंट तो नेगेटिव डिके कांस्टेंट के इक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू ओनली द डिके कांस्टेंट. ओके. Use figure 9.1 to determine the half-life in milliseconds of the polonium 193. First of all, इसका gradient निकालो. 0,0. Which other point can I choose? ये वाला अच्छा point है. Let's say this is x-axis में क्या है? ये 0.6. Okay जी. Y-axis में क्या है? -1. Can you calculate the gradient here? Yes sir. Gradient कैलकुलेट कर सकते हो जी, बिल्कुल. y2 क्या है? -1 -0. x2 क्या है? 0.6 -0. x के यूनिट्स देख रहे हो? मिली सेकेंड है. 10 raised to the power of -3. What will your gradient come out to be? -1 divided by 0.6 10 raised to the power of -3. ये आ गया -1666.7. ठीक है.
ये आपका ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट। अच्छा, यू सी हियर, देखो 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 यहाँ पे क्या हो रहा है, एन एरर दैट आई मेड हियर, देखो 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 जरा, यू हैव टू गिव योर हाफ लाइफ इन मिली सेकेंड्स। आपने अपनी हाफ लाइफ किस में देनी है, मिली सेकेंड्स में देनी है बेटा। अगर आपने अपनी हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में देनी है बेटा, तो यहाँ पे जब आप ग्रेडियंट निकाल रहे हो तो मिली सेकेंड्स को सेकंड में कन्वर्ट ना करो, क्योंकि हाफ लाइफ तो आपने मिली सेकंड में ही देनी है, तो ग्रेडियंट भी मिली सेकंड में ही निकालो भाई। वेरी गुड, -1 डिवाइडेड बाय 0.6, दिस कम्स आउट टू बी -5/3। ये मिली सेकंड में आंसर है। ओके, gradient is equals to negative of decay constant, -5/3 is equals to negative decay constant। decay constant क्या आ गया, 5/3 मिली सेकेंड -1। क्या अब आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो, यस, हाफ लाइफ इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाय द decay constant, ln2 divided by 5/3। what will this come out to be, let's see, ln2 divided by 5, this comes out to be 0.42 millisecond। आपकी हाफ लाइफ क्या आ गई, 0.42 मिली सेकेंड। यहां तक बात। Positron emission tomography PET scanning uses a radioactive tracer। State what happens to the positrons emitted by the radioactive tracer। जो radioactive tracer positrons emit करता है उसके साथ क्या होता है, these positrons combine with electrons and they annihilate। क्या होता है, positrons positrons combine with electrons and annihilate, simple, annihilate। Okay, explain why a tracer with a half life of approximately 2 hours is suitable to use। भाई हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 hours क्यों suitable है for the tracer, because the half life is long enough to conduct investigation and it is short enough so that the patient does not receive unnecessary exposure to radiation। देखो ये जो हाफ लाइफ ऑफ 2 hours है ना, ये बहुत ही ठीक है, मीडियम वैल्यू है। यू विल से इट इज short enough so that the patient doesn't receive doesn't receive excessive or doesn't, अच्छा इसको, sorry, doesn't receive or the patient doesn't face or the patient doesn't have unnecessary, it is short enough so that the patient does not have unnecessary, unnecessary would be a better word, unnecessary exposure to radiation, and it is long enough to conduct investigation, to conduct investigation। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आगे बढ़ते हैं जी, लेट्स फर्दर मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार। अब लिटरली ये तो बहुत इजी डेफिनेशन है। व्हाट इज मेंट बाय लुमिनोसिटी ऑफ अ स्टार, टोटल पावर emitted by the star, so you can write here total power emitted by the star। okay, और क्या होगा, explain how standard candles can be used to determine the distance to a galaxy। this is written in the notes। बेटा स्टैंडर्ड कैंडल्स किस तरह यूज होंगी टू डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सी। स्टैंडर्ड कैंडल्स हैव known luminosity, you can measure the radiant flux intensity on the earth। apply F is equals to L divided by 4 pi
टी स्क्वायर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाओ। The sun rotates on its axis. Point x, y, and z are on the equator of the sun, as shown in figure 10.1. ठीक है, x, y, z आपके इक्वेटर पे होंगे. The wavelength of lights from x, y are observed and recorded. ठीक है, wavelength of lights from x and y are recorded. ठीक हो गया. x पे ये है, y पे ये है. Can you realize x की जो wavelength है वो slightly greater है compared to y. ठीक है. एंड दीज आर ऑब्जर्व वेवलेंथ्स. ठीक है, ये कौन सी वेवलेंथ्स हैं? वो वेवलेंथ्स हैं जो आपने अर्थ पे ऑब्जर्व की हैं फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड फ्रॉम पॉइंट वाई. ठीक है, देखो ना, बहुत सिंपल सी बात है. पॉइंट एक्स जो है यहाँ पे है, पॉइंट वाई जो है वो यहाँ पे है. आपने वाई से जो वेवलेंथ ऑब्जर्व की है ऑन द अर्थ, दैट इज लेस कंपेयर टू द वेवलेंथ दैट यू हैव ऑब्जर्व ऑन एक्स. ठीक है यार, ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. The sun rotates with a period of this. This is your time period. Show that the radius of the sun is this. अच्छा जी, हमने रेडियस निकालना है of the sun. किस तरह निकालेंगे? Very, very, very easy. First of all, do you realize orbital speed का formula 2 pi r over t. आपने क्या निकालना है? You have to calculate this radius. Do you have the time period? Yes. Do you have the velocity? No. वेलोसिटी निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं. चेंज इन वेवलेंथ ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ रिसेशन डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट. अच्छा जी, चेंज इन वेवलेंथ क्या होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट द चेंज इन वेवलेंथ? 656.6877 माइनस 656.2831. ये बहुत ही बेकार सी कैलकुलेशन है, लेकिन हमने करनी पड़ेंगी. चेंज इन वेवलेंथ क्या आ जाएगी? 656.2877 माइनस 656.2831 into nanometers 10 is the power of -9 divided by the actual wavelength. एक्चुअल वेवलेंथ कौन सी होगी? तो सेंटर पे होगी. सेंटर वाली कौन सी वेवलेंथ है? 656.2831. 656.2831 10 raised to the power of -9. Speed of recession हमने निकालनी है. Speed of light is 3 into 10 raised to the power of 8. Can you calculate the speed of recession? इसमें स्पीड ऑफ रिसेशन निकाल सकते हो? जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो निकालो जरा, क्या आती है? करो जरा है कैलकुलेटर में बड़ी सी कैलकुलेशन. 656.2877 माइनस 656.2831. 656.2831 3 into 10 is the power of 8. Your speed of recession comes out to be 2102 या 2103 कर लो. ठीक है. Now can you calculate the radius r? Yes. V is equals to 2 pi r. Okay. Have I done anything wrong here? मैंने गलत कैमरा ख्याल है. ठीक है, सही. सो 2 पाई आर ओवर टी था. वेलोसिटी क्या आ रही थी भाई? 210 इनटू टाइम पीरियड क्या आ रहा था हमारे पास? 2.07 into 10 is the power of 6. Okay, divided by 2 pi is equals to your radius. Can anyone calculate the radius? चलो देख लेते, कैलकुलेट कर लेते. अगर गलत होगा तो पता लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस गिवन है. वी हैव टू जस्ट वेरीफाई वेदर वी गेट द करेक्ट आंसर और नॉट. Yep, we get the correct answer. Alhamdulillah, 6.93. I am very happy right now. 6.9310 is the power of 8 meters is your answer. Simple. Let's further move ahead. State and explain how the expected wavelength of light observed from Z compares with the emitted wavelength. अच्छा जी, अब हमने बताना है Z पे
वेवलेंथ किस तरह की होगी कंपेयर टू द इमिटेड वेवलेंथ? बेटा इफ यू रियलाइज z क्या कर रहा है, z जो है वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ. इफ z is moving towards the earth, what will happen? Its wavelength will क्या होगा? बता सकते हो? वेवलेंथ क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी. So you will say since since z is moving towards the earth, the observed wavelength decreases compared to the emitted wavelength. Compared to the emitted wavelength. Simple. अब आगे आ जाओ बच्चों, क्या लिखा हुआ है? The luminosity of sun is this. Use the information in B part 1 to calculate the surface temperature of the sun. How will you do that? L is equals to 4 pi Stephen Boltzmann constant R square temperature की power 4. The luminosity is 3.810 raised to the power of 26 divided by 4 pi. Stephen Boltzmann constant is 5.6710 raised to the power of minus 8 divided by the radius का square. Radius क्या है? 6.9310 raised to the power of 8. 9310 raised to the power of 8 का whole square. Take a under root of power 4 to calculate temperature. What does your temperature comes out to be? Temperature comes out to be 5800 kelvins. I hope this entire paper was clear to all of you. कोई सवाल है तो